اور میں ہوں احمد علیم حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے متفقہ طور پر منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے قومی اسمبلی میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے۔ جی ہاں، عام خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے متفقہ طور پر منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت متفقہ طور پر منظور کی۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں لارجر بینچ نے ہماری بے گناہی کی گواہی دے دی۔ آج انتقام کی سیاست زمین بوس ہو گئی۔ سلیکٹڈ حکمرانوں نے قوم کے 3 سال کیوں ضائع کیے؟ ملک میں صرف انتقام اور بربادی کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا سلیکٹڈ حکمران نے ملک کو تباہ کر دیا۔ کٹ پتلی سلیکٹڈ حکمران کے دن گنے جا چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ لارجر بینچ نے ہماری بے گناہی کو ثابت کر دیا ہے۔ آج انتقام کی سیاست زمیں بوس ہو چکی ہے۔ سلیکٹڈ حکمران نے قوم کے 3 سال کیوں ضائع کیے؟ ملک میں صرف انتقام اور بربادی کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ حکمران نے ملک کو تباہ کر دیا۔ کٹ پتلی سلیکٹڈ حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کہتی ہیں 10 سال کہیں بھی ناانصافی کا سن کر پہنچ جانے والے کو بالآخر انصاف مل گیا۔ اپنے ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کرو۔ جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے۔ جتنی مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ان کا جرم صرف وفائے نواز شریف ہی نکلا۔ جی ہاں، مریم نواز کا ٹویٹ میں بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا 10 سال کہیں بھی ناانصافی کا سن کر پہنچ جانے والوں کو آخر انصاف مل گیا۔ اپنے ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کرو۔ جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے۔ جتنی مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ان کا جرم صرف وفائے نواز شریف نکلا۔ حمزہ شہباز کا پارٹی صدر شہباز شریف کی ضمانت پر اظہار تشکر۔ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کارکردگی، وعدوں کی تکمیل، احتساب اور امانت داری کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئی۔ دعاؤں، محبتوں اور اپنی حمایت سے نوازنے والے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہباز شریف کی قیادت میں ملک و قوم کی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ شہباز شریف کی قیادت میں ملک اور قوم کی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ حمزہ شہباز کا پارٹی صدر شہباز شریف کی ضمانت پر اظہار تشکر۔ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کارکردگی، وعدوں کی تکمیل، احتساب اور امانت داری کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئی۔ دعاؤں، محبتوں اور اپنے حمایت سے نوازنے والے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہباز شریف کی قیادت میں ملک اور قوم کی خدمت کا مشن جاری رکھا جائے گا۔ دوسری جانب نیب راولپنڈی نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف نئی انکوائری شروع کر دی۔ نیب نے شاہد خاقان عباسی کو پاکستان پیٹرولیم کے سابق ایم ڈی کی برتی میں 26 اپریل کو طلب کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق پاکستان پیٹرولیم کے سابق ایم ڈی کی برتی سے متعلق کچھ اہم شکایات موصول ہوئی تھیں جس سے متعلق اہم ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات کے لیے شاہد خاقان عباسی اور سابق ایم ڈی وامق بخاری کو طلب کیا گیا۔ ان سے نیب کی ٹیم تحقیقات کرے گی۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں چینی کا معاملہ سیدھا ہے، قصوروار وزیراعظم اور وفاقی کابینہ ہے۔ عوام شناختی کارڈ ہاتھ میں پکڑے چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ نیب چیئرمین ای سی سی کو بلائے، صوبائی وزراء کا کیا تعلق ہے؟ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر قومی اسمبلی کے نوٹس پر کہا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگوں گا، کسی اور سے نہیں۔ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں، عوام مشکل میں ہیں۔ صرف ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں، اسپیکر سے کسی اور انسان سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ فیصلہ کیا ہے ملک کے وزیر اعظم نے، اس کو بلائیں نا نیب کے اندر، ای سی سی کے چیئرمین کو بلائیں نا نیب کے اندر،
ان वज़रा को बुलाए नैब के अंदर जो पाकिस्तान की 40% चीनी के मालिक हैं, जो ये फैसले करते हैं कि चीनी की कीमत 53 रुपये से बढ़कर 115 रुपये से ऊपर चली गई है। और आज इस मुल्क के अवाम जो हैं वो एक एक किलो चीनी शनाख्ती कार्ड में हाथ में लेकर एक एक किलो चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। आज मुल्क के हालात आप देख लें, कल कोविड का बदतरीन दिन था। यहाँ एक NCOC बनी हुई है, यहाँ पर वज़रा की एक फौज है जिनकी नौकरियां रोज बदली जाती हैं। आज तो ये बताए कि ये 23 करोड़ का मुल्क जो है वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा है। मुल्कों ने जिनकी आबादी 2-2, 4-4 करोड़ थी, करोड़ों टीके हासिल कर लिए। आज पाकिस्तान की हुकूमत एक टीका खरीद नहीं सकी। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर अवाम जो हैं अपने पैसे से वैक्सीनेशन लेकर लगाने पर मजबूर हैं। तो मेरी गुजारिश है इस NCOC को बंद करें, ये नाकाम हो चुकी है, ये पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, ये कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। आज लोग मुश्किल में हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग की लीडरशिप इखलाकी तौर पर दिवालिया है, बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कह देते हैं। वजीर इत्तलात और नशरियात ने अपने एक बयान में कहा कि पनामा से कोरोना तक झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग की लीडरशिप अखलाकी तौर पर दिवालिया है, बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कह देते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने अपने एक बयान में कहा पनामा से कोरोना तक झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। मुआमले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी को जवाबदेही के लिए तलब किया गया मगर वो हर्जा सराई में मसरूफ रहे। एक बयान में शहबाज गिल ने कहा कि LNG की खरीदारी ओपन मार्केट की बजाय कतर से महंगे दामों में की गई। कौमी खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाने वाले सजा के मुस्तहक हैं। आम गैस सार्फिन से नाजायज तौर पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए वसूल किए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कोयटा धमाके को खुदकुश करार दे दिया। कहते हैं खुदकुश हमला आवर कार में ही बैठा रहा, बड़े शहरों में मौजूद दुश्मन अमन को खराब कर रहे हैं। 22 इदारों को सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हिदायत जारी कर दी गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की कोशिशें हैं। अमन और अमान से मुतालिक अहम कानून कौमी असम्बली में लाना चाहते हैं। अजीम फौज और एजेंसियां हमारी ताकत हैं। को अंदर से डिस्टेबल करने की गैर मुल्की कोशिशें हैं और इन गैर मुल्की कोशिशों को पाकिस्तान फलता और फूलता दिखाई नहीं दे रहा। और गैर मुल्की जो मुल्क दुश्मन पाकिस्तान, सारे गैर मुल्कियों की बात नहीं करता, जो पाकिस्तान की तरक्की जिनको एक आंख नहीं भाती, जो इतने बड़े इकोनॉमिक डिफॉल्ट से भी निकला और बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा रहा था, इस हमले की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हतमी फैसला तो तहकीकात के बाद आएगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा कि फ़ौरन इसकी तहकीकात करें। ग्वादर पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और ग्वादर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और ग्वादर से पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो लहरें निकलनी है, और चीन पाकिस्तान का एक आजमूदा दोस्त है। हमारी चीन से दोस्ती कोमालिया से भी बुलंद है और हर सीजन की दोस्ती है। इस धमाके के असल मकासद जो हैं वो पाकिस्तान के अमन को ताया बाला करना है और पाकिस्तान के मामलात को नुकसान में से गुजारना है। इस वक्त 11 जो ज़ख्मी थे उसमें से बाकी चले गए हैं, 6 ज़ख्मी जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं।
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोयटा धमाके की सख्त मज़म्मत। वज़ारत दाखिला को हिदायत दी कि कोयटा धमाके की हर पहलू से तफ्तीश करें और मामले की तह तक पहुँचें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर गम है। हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से चौकस हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने भी कोयटा धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है और कहा है कि दुश्मन मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने मुलाकात की। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि कौम की ताईद और हिमायत से दुश्मन के मज़मूम मज़ाइन पहले भी नाकाम बनाए, आइंदा भी बनाएंगे। कौम और सिक्योरिटी इदारों ने क़याम अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। बुज़दिल दुश्मन बहादुर कौम के पुख्ता अज़म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। मनफी सियासत को 22 करोड़ अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। पैर दर पैर नाकामियों के बाद मुखालफिन को नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन कहते हैं, इमरान खान से देरीना ताल्लुक है। खान साहिब से ऐसा रिश्ता है जो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि इन पर बेबुनियाद FIRs बनाई गई हैं। मेरे घर में एक इफ्तारी थी, उसके इफ्तारी से एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। और रिक्वेस्ट ये आपसे कि आप इस इफ्तारी को पोस्टपोन करके आगे करें। अब मैंने सारे लोगों से अपने मशवरा किया, तमाम ग्रुप के लोगों से मशवरा किया और सबका ये ख्याल था कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से तो हम इसको रुकावट ना बने और एक इफ्तारी है उसको हम आगे करते हैं। इफ्तारी तो हम जब मर्जी कर सकते हैं, इसलिए इस वजह से ये इफ्तारी जो है वो हमने आगे की। अब उसके बाद मुतवक्को है, मैं आपको ताज़ा बता रहा हूँ, मुतवक्को ये है कि ये मुलाकात PTI के रहनुमा राजा रियाज ने इंकशाफ किया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में मजीद अफराद शामिल हो रहे हैं। तरीन ग्रुप की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमें इंडिया दिया गया है कि वजीर आजम से जल्द मुलाकात होगी। देखेंगे मुलाकात में क्या मामलात तय पाते हैं। जी हाँ, उनका कहना था देखेंगे कि मुलाकात में क्या मामला तय पाते हैं। PTI के रहनुमा राजा रियाज ने इंकशाफ किया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में मजीद अफराद शामिल हो रहे हैं। तरीन ग्रुप की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमें इंडिया दिया गया कि वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात होगी। सेशन कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी है। सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। जहांगीर तरीन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। हम तफ्तीश में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उम्मीद है जो इल्ज़ामात हैं उसमें सुरखरू होंगे। जहांगीर तरीन के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों मुकदमात में तमाम तर इल्ज़ामात का रिकॉर्ड फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में FIA अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगा। FIA के तफ्तीशी अफसर ने अपने बयान में कहा कि तमाम इल्ज़ामात पर तफ्तीश कर रहे हैं। मुलजिमों का नामुकम्मल रिकॉर्ड कमरा अदालत में मौजूद है। अदालत ने FIA के रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद दोबारा फाइल तफ्तीशी अफसर के हवाले कर दी। फाजिल जज ने हुक्म दिया कि इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट कहाँ है, इसको भी पेश किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट खुफिया होती है। फाजिल जज ने कहा कि मुलजिमान की आइंदा समाअत पर इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। नाजरीन, शुगर स्कैंडल में हुकूमती शख्सियात की तलबी का सिलसिला जारी है। पंजाब के वजीर आपाशी मोहसिन लगारी को भी नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया।
रावलपिंडी ने शुगर स्कैंडल में पंजाब के वजीर आबाशी मोहसिन लगारी को तलब कर लिया। इन्हें 4 मई को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम मोहसिन लगारी से तफ्तीश करेगी और इस सिलसिले में इन्हें 2018 ta 2019 शुगर सब्सिडी का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की गई है, जबकि मोहसिन लगारी से शुगर एक्सपोर्ट का इजाजतनामा लेने का कार्ड भी तलब किया गया है। नाजरीन, वफाकी वजीर खुसरू बख्तियार ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखकर शुगर एडवाइजरी बोर्ड को वजारत सन्नत के बजाय किसी और वजारत के मातहत करने की दरख्वास्त की, जिसकी वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने खत में कहा कि मफादात के टकराव से बचने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड किसी और वजारत के मातहत किया जाए। अवाम के हालिया खदशात के पेश नज़र ज़रूरी है कि चीनी से मुतालिक मामलात कोई और वजारत देखे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसरो बख्तियार की दरख्वास्त की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को किसी और वजारत के मातहत करने की हिदायत कर दी हैं। सेक्रेटरी सनत और पैदावार दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर शुगर एडवाइजरी बोर्ड किसी और वजारत के मातहत करने के इक़दाम करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में 98 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 16,698 हो गई। मजीद 5,857 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,78,238 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,76,605 सेहतयाब, जबकि 85,000 मरीज ताहाल जेर इलाज। कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,718, सिंध में 4,562, खैबर पख्तूनख्वा में 2,990, बलोचिस्तान में 226, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 449 और इस्लामाबाद में 649 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,857 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,79,437, सिंध में 2,75,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,09,704, बलोचिस्तान में 21,242, गिलगित बल्तिस्तान में 5,215, आज़ाद कश्मीर में 16,026 और इस्लामाबाद में 71,533 अफराद कोरोना का शिकार हुए। और अब बात करें दुनिया भर में कातिल कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,72,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14,45,00,000 हो गई। 12,27,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,84,000, ब्राजील में 3,82,000, भारत में 1,85,000, मैक्सिको में 2,14,000, रूस में 1,06,706, फ्रांस में 1,02,000, बरतानिया में 1,27,327 और सऊदी अरब में 6,858 अमवात हो चुकी हैं। आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब किसी दबाव या धमकी की परवाह नहीं करता। आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तमाम अफराद को मशवरा है कि नैब पर बिला जवाज तनकीद मत करें। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है। नैब किसी दबाव और धमकी की परवाह किए बगैर आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। नैब का ऐसे तमाम अफराद को मशवरा है कि नैब पर बिला जवाज तनकीद ना करें। अपना वक्त अपने खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दाई रेफरेंसेस के दिफा में खर्च करें। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नाजरीन, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लेजेंड मोइन अख्तर की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोइन अख्तर को फन की अकेडमी कहा जाता था। फिल्म हो या टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, मोइन अख्तर ने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। मोइन अख्तर के तंज़ो मज़ाह से भरपूर जुमलों ने तज़ब्बुब का एक नया पहलू मुतारिफ करवाया। देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट। बताओ, 3 बच्चे और तीनों CSP। सुबह CSP, शाम को OSD, सुबह ITO, शाम को PTO। हाँ। कहते हैं फन कभी नहीं मरता। मोइन अख्तर भी ऐसे ही फनकार थे
جنہوں نے اپنے فن سے لوگوں میں خوشیاں بانٹیں۔ معین اختر نے 1966 میں اپنے فنی سفر کا آغاز یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے پروگرام سے کیا۔ کچھ یاد آ گیا کہ ایچ ظلم است کے بعدید آئے تھار می بینم صدیق ارشد صاحب۔ شکریہ قریش پور صاحب، آپ اختر شماری کیجئے، ہم مردم شماری کریں گے۔ انہوں نے ٹی وی اور سٹیج کے ڈراموں میں بھی کام کیا۔ کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کرکٹ میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں جی۔ عمران خان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ میں نے کرکٹر میں نہیں کہا، میں نے کہا کرکٹ میں دلچسپی نہیں۔ روزی کے کردار نے ان کو فن سفر کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ عورت مجبوری کے تحت گھر سے نہیں نکلتی، وہ زمانہ چلا گیا ڈاکٹر جب مرد عورت کو شکار سمجھتا تھا۔ معین اختر نے مختلف ٹی وی سٹیج ڈراموں اور ٹاک شوز میں بھی کمال کی اداکاری کی۔ میں نے صرف پیچھے اتنا پوچھا، میں نے کہا کی حال ہے طارق صاحب؟ بس یار اللہ دا شکر ہے، تو سنا کی حال نے تیرے؟ کہنے لگے زندگی کے نہا خانوں میں جب پگ ڈنڈیوں پہ اڑتے ہوئے پرندے جب پرواز کرتے ہیں تو سورج کی کرنیں ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہیں۔ معین اختر 22 اپریل 2011 کو حرکت قلب بند ہونے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور اب ٹوڈے